The number of participants is going up rapidly. Yeah, everyone will be joining in now. Everyone will join in. So 55 people already. Yeah, so yeah, they can see you and hear you. Yeah. Okay, let me just share my screen. So we are. Nitesh, is the screen visible? Yes. Okay. Is there any limitation, or you have opened for like n number of people? Yeah, I mean, more than 100 people can easily join. We have good capacity. So we'll just wait for everyone to just come in, and then we start in the next 1 minute. So actually, I'll stop the share and let everyone's face be visible first. I think let's begin. We have close to about 100 people in, so I think it's a good time to start. And so welcome everyone. We have a full action-packed panel today. सभी का स्वागत। आज ये सेमिनार वेबिनार में आने के लिए हमारे पास एक अच्छा खासा पैनल आज है। It's an elaborate panel because the topic that we're going to do is on loudspeakers and amplifiers, which is always a mystery. जो हम आज टॉपिक करने वाले हैं वो स्पीकर और एम्पलीफायर के ऊपर होगा, जो बहुत बड़ा मिस्ट्री है बहुत लोगों के लिए, बिकॉज इट्स नॉट एन ईजी सब्जेक्ट। बहुत सा मुश्किल सब्जेक्ट है, इसके ऊपर कोई डिफाइंड लिटरेचर नहीं है। देयर इज no real defined literature on loudspeakers and amplifiers. A lot of specifications, a lot of details on the products. A lot of people come and ask me, what should I use? Which speaker should I use in what application? बहुत से लोग आके पूछते हैं कि ये स्पीकर मैं कहाँ यूज़ करूँ, कौन से बॉक्स में यूज़ करूँ। Hopefully by the end of today's session we'll be able to decipher that. आज के सेशन के बाद अगर हो सके होपफुली आप सभी को अच्छा ठीक ठाक आइडिया आ जाना चाहिए कि हम कौन सा स्पीकर कस्टमर्स को रेकमेंड करें या कौन सा स्पीकर कहाँ यूज़ करें। So just quickly, we are just introducing our panel here today because it's it's such a complicated subject. आज बहुत ही subject complicated है. We've decided to get one big manufacturer on board, which is Celestion, whose parent company is GP Acoustics. Celestion, just a brief background, is one of the largest companies in the world manufacturing loudspeakers. Celestion दुनिया का सबसे बड़ा कंपनी है जो स्पीकर मैन्युफैक्चर कर रहा है। They manufacture under the brand of Celestion, and they also manufacture a lot of OEM brands like DNB, Martin Audio, EAW, Mackie, a lot of brands that there's no Function One. There's a lot of brands they manufacture for. Celestion जहाँ की ये दुनिया में almost सबसे बड़ा ब्रांड है, और इट्स वन ऑफ द ब्रांड्स जो बहुत से बड़े बड़े कंपनियों के लिए स्पीकर बनाता है, जैसे कि DNB, फंक्शन वन, मार्टिन ऑडियो, EAW, मैकी, बहुत सी कंपनियां हैं। उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, बट आज एटलीस्ट हमें एक आइडिया आएगा कि कौन कहाँ मतलब स्पीकर के बारे में हम जितना जानकारी ले सकते हैं आज ले लेंगे। एंड अगेन ये आज के सेशन के लिए प्लीज़ जितना भी सवाल आपको पूछना है, हमने वो क्वेश्चन यू हैव, वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव इन रिगार्ड टू लाउड स्पीकर्स एंड एम्पलीफायर्स, प्लीज आस्क, डोंट हेजिटेट। अगर आपको लगे कि मैंने आज जो मेरा सवाल है बहुत ही एकदम ऐसा लगेगा कि मैं कुछ बेवकूफ़ी का सवाल कर रहा हूँ, कुछ भी हिचकिचाना मत, डू नॉट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग। वी आर द रीजन वी हैव अ गुड पैनलिस्ट, a full house panelist to answer every kind of question that is coming in. So I'll just quickly introduce all whoever we have today with us. आज सभी का एक introduction कर लेंगे।
फर्स्टली फ्रॉम यूके, बहुत ही जल्दी है यूके में, आज सुबह के सिर्फ 6:30 बजे, इट्स ओनली 6:30 इन द मॉर्निंग आउट देयर, and guys from Celestion have been very kind and considerate to join us. So firstly we have Neville Ryan, who's part of the engineering team at Celestion. Hey guys. Neville, you want to say something? No, I'm quite good. I think you've done a good introduction. Thank you. And we have Neil McDougall, who is part of the sales, and I hope after this session, considering the coronavirus, he wants to, move from sales to engineering, because there's more development work happening right now than sales, thanks to coronavirus. So Neil, please say hi to everyone. Yeah, good morning. Hello, everyone. We also have the distributor for Celestion in India. So the whole North is taken care by Decibel. So we have Vishal from Decibel, who's a distributor. And we also have Bharat ji, who's from South. Many of you will know from South. जो Calicut में Sun Electronics है, वहाँ से Bharat ji है. Bharat ji, सबको hi बोलिए please. Hello everyone. And we also have, as usual, your favorite panelists who are also going to be moderating this event. That is Nitesh Narayan, who's heading Stage Mix, and a very well-known mix engineer, knows a lot of his stuff. Currently doing Zoom mix. Yeah, thanks guys, good to be here. And we have Rajesh, Dr. Rajesh Khade as well, who's the famous doctor who's doing a lot of things in sound out of passion. Smart के instructor है, and Dante के instructor है, and he's the distributor for Smart, one of the best FFT platforms in India. What's that? Rajesh, you can say hi to everyone. You're muted. Hi everyone. Good morning. So so we have an elaborate panel. आज बहुत बड़ा panel है. आपको कोई भी question है, even if it's not related to loudspeakers, maybe it's related to even Smart or anything, Rajesh can answer it on the side. We have a good panel, and even if it's something आपको एकदम non-related question पूछना है, जैसे कि Smart के license का price क्या है या कुछ, you just put everything under there, because आज का session is not very it's more a lot of theory and understanding. ज़्यादा हम लोग practical use में कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकते. I don't have an anechoic chamber. मेरे घर पे एक anechoic chamber नहीं है जहाँ मैं speaker का measurement आपको live दिखा सकता हूँ. तो उसके लिए, but then also I've tried to include a lot of questions to make sure आपके सारे concepts थोड़े clear हो जाएंगे. Hopefully ये session के बाद आपके पूरे जो भी doubts questions है, आपको एक fair bit idea होगा, और speaker का एक science इतना ज़्यादा complicated study नहीं, आपको ज़्यादा complicated study नहीं लगेगा. So I'm just going to quickly share my screen. Are we good to move ahead, guys? Yep, good to go here. Okay, so I'll just quickly share my screen and let's begin. Okay. So आज का session जो हम करने वाले हैं is going to be on loudspeakers and amplifiers. We are going to look at जो loudspeaker के specification sheet में आप देखते हैं, Thiel small parameters and specifications, और वो specification क्या है उसके बाद थोड़ा जानकारी हम सीखेंगे. Today we are going to learn about all the specifications that come with loudspeakers and amplifiers. Just briefly going through what you can speakers and audio is all about. So we're just going to go through some concepts before we just begin. And so firstly, you all know that sound travels through air. Air जैसा क्या है, we need sound cannot travel through vacuum. Vacuum के अंदर आवाज नहीं flow हो सकती है. So air is the perfectly elastic medium. मतलब आप उसको compress करेंगे, उसको rareify करेंगे, वो जैसे ही वो compression या rareifying force निकाल देंगे, एयर का जो स्टेट है वो इलास्टिक होने, रबर बैंड की तरह अपने आप इमीडिएटली एक बार वो फोर्स निकाल दिया, एयर हवा जो है हमेशा अपने आप ओरिजिनल स्टेट पे अपने आप रिकवर हो जाएगा. सो जैसे कि स्पीकर का कोन आगे पीछे मूव होता है, as there is a cone of this loudspeaker cone moving front and back, there is compression and rarefaction. You can see, आप देख सकते हैं कि ये प्रेशर आगे पीछे हो रहा है. That's what exactly a loudspeaker is exactly doing, and this variations in pressure is what reaches our ear. जो प्रेशर का वेरिएशन है, ये जो मैं रेड एरिया में मार्क कर रहा हूँ, वो कभी हाई प्रेशर कभी लो प्रेशर,
ये हमारे कानों तक पहुंच रहा है. एंड दिस कैन बी the behavior of this can be represented by a sine wave. So as you can see down here, there's a sine wave to represent the behavior of the air molecules, and we've done multiple session. बहुत session में हमने देखा है कि sine wave is going through peaks and you can say crests and troughs. So there's a peak and there's a dip, which is indicating a compression and rarefaction. जो sine wave है उसका peak और dip उसका हवा का कंप्रेशन और रेरिफैक्शन को सिग्निफाई करता है. सो जस्ट मूविंग ऑन, जो वेव्स है एक सिर्फ सिंगल वेव नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स वेव्स हमारे कानों तक पहुंचती है. जो आप देख सकते हैं नीचे एक लो फ्रीक्वेंसी का वेव है, एक सपोज 1 सेकेंड के अंदर वो कम वेव्स है, और उसके साथ ही साथ हाई फ्रीक्वेंसी भी आता है. तो एक हमारे कानों तक एक सिंगल वेव नहीं पहुंचता है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स वेव ऑफ मल्टीपल वेव्स. सो दीज आर हाउ साइन वेव्स एक्चुअली ऐड, एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट परसीव इन आवर ईयर्स. सो जो हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अलग तरीके से प्रोसेस करता है. हमने पिछली बार देखा था, वी हैड सीन हाउ द ईयर वर्क्स प्रीवियसली and how the air compression and rarefactions reach our ear, and how we interpret them with small hair molecules. छोटे बाल के structure है हमारे कानों में, which the different positions intercept low frequencies, mid frequencies and high frequencies. So and again जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का है उनका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी शायद सेम रहेगा. अगर एक बेस गिटार है या एक डीप पियानो है, दोनों का एक जो फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी वो भेज रहे हैं वो लगभग सेम रहेगा, बट उसके जो हार्मोनिक्स है उसके अलग अलग आगे जो फ्रीक्वेंसी है जो सुपर इम्पोज होके आते हैं, उसमें एक अलग से एक टिम्बर आएगा, जिसकी वजह से गिटार का आवाज़ गिटार की तरह और पियानो का आवाज़ पियानो की तरह है. और दोनों का अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है सेम होने के बावजूद, ये जो हार्मोनिक्स ऐड होते हैं उसकी वजह से वी परसीव वी गेट जो अलग इंस्ट्रूमेंट का म्यूजिकल कैरेक्टर है, it's because of the timber. And again we all know जो हमारे कानों का human hearing range है, the range of a human hearing is from 20 hertz to 20 kilohertz. So हम लोग के कानों का it's a lot of frequencies to work with. हमारे कानों का response is very complex. We have a very complicated human hearing system, and so accurate reproduction of all these frequencies is extremely important. So choosing the right speaker, understanding what speaker is used where, what happens when you put it in a cabinet is extremely important. जो speaker हम select करते हैं उसको कौन से cabinet में डालते हैं, cabinet में डालने के बाद उसके क्या effects है, ये सब को समझना बहुत ज़रूरी है. Which is why we've taken up this topic today to understand what is happening with loudspeakers and when we are dealing with them. So when they all combine, जब सारे waves combine होते हैं, जो speaker आगे पीछे मूव होता है, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट होती है. जैसे कि आप देख रहे हैं एक पूरा मल्टीपल अलग अलग फ्रीक्वेंसीज जो ऑर्केस्ट्रा का है, पूरा ऑर्केस्ट्रा का फ्रीक्वेंसी जो स्पीकर उसके लिए डिज़ाइन किया है वो स्पीकर से अलग अलग फ्रीक्वेंसी एक साथ निकलती है, एंड इट्स सेंडिंग आउट थाउजेंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज एट वन गो. सो we are dealing with a very complex phenomenon of this whole speaker working. So it's something that we need to respect, that it's one of the fundamental building blocks. जो हमारे कोई भी speaker system का बहुत fundamental building block जो है एक speaker और amplifier. आप कोई भी अलग अलग system use करो, if it's a DJ system, a live system, something like a home karaoke system or home theater system, the only common factor you will find in everything is the speaker and the amplifier. हर एक कोई सिस्टम में आपका घर का कैरोके एम्पलीफायर ये सिस्टम होगा, या लाइव शो होगा, या डीजे सिस्टम होगा. हर कोई एप्लीकेशन में द मोस्ट बेसिक जो उसका कंपल्सरी सबसे वाइडली यूज एलिमेंट है वो है स्पीकर और एम्पलीफायर. आपका मिक्सर चेंज होगा, आप कभी लाइव मिक्सर यूज करेंगे, आप कभी डायरेक्ट आपके माइक्रोफोन से टीवी में अंदर डालेंगे कराओके सिस्टम में, या होम थिएटर में आप डायरेक्ट डीवीडी प्लेयर या उससे डायरेक्ट एवी रिसीवर में डालेंगे. बट जो सबसे कॉमन चीज़ जो है हमारे कोई भी सिस्टम में वो स्पीकर और एम्पलीफायर रहेगी, और इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है. सो वी नो व्हाट्स एग्जैक्टली हैपनिंग. सो just to I'm going to launch a poll.
मैं एक पोल लॉन्च करने जा रहा हूं जो आपको सबको एक क्वेश्चन पूछेगा। अगर हमने जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ आइडिया, अगर हमने एक स्पीकर के सामने एक कॉइल इंडक्टर अगर लगाया और उसके सामने इंडक्टर के बदले में एक कैपेसिटर लगाया, सो इंडक्टर का रिएक्टेंस जो है जो उसका रेजिस्टेंस है वो 2 पाई FL है। मतलब तो उसका फॉर्मूला है 2 इंटू पाई जो 3.14 है इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू एल जो इंडक्टर का वैल्यू है। जैसे आपने देखा है कॉइल का इंडक्टर का वैल्यू 0.5 मिली हेनरी या 1 मिली हेनरी या 2 मिली हेनरी है। तो हम आप सबको थोड़ा समझने के लिए, यू नो, जस्ट टू अंडरस्टैंड how many of you guys know what happens to a speaker if you put a coil in front of it, if you put a capacitor in front of it. अगर उसके पैरेलल में आप देख सकते हैं, पहले हमने सीरीज में डाला था और अभी ये कॉइल उसके पैरेलल में डाल रहे हैं और एक कैपेसिटर उसके पैरेलल में डाल रहे हैं। So I'm just going to send out a poll to you guys so you guys can vote. Is the poll visible now? Yep. So please vote what you think is going to be the effect. जो पहला केस है, it's the effect of adding an inductor in series with a loudspeaker. तो please choose आपका आंसर A, B और C. And जो second केस है उसमें please vote what you feel जो आपका frequency response होगा when the pole is when there's a capacitor in series. अगर आपका series में capacitor रहेगा तो उसका इफेक्ट लाउडस्पीकर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे क्या होगा, और अगर इंडक्टर आपने पैरेलल में डाला तो उसका इफेक्ट क्या होगा, और कैपेसिटर उसको पैरेलल स्पीकर के पैरेलल में रखा तो इसका इफेक्ट क्या होगा। आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। सो लेट्स जस्ट गिव इट मे बी 10 or 20 seconds to for people to vote, and then we'll take case by case so we understand what's going to happen. Again, आप प्लीज घबराइए मत। मतलब if it's the wrong answer, don't worry about it. There's no prize for getting the right or wrong answer, but जो भी आप प्लीज सोचिए कि what you feel is going to be the effect of adding these components to आपके स्पीकर के सामने आपका कंपोनेंट आप डालेंगे तो क्या इफेक्ट होगा, ये समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। So by all means, please go ahead. We have about 20% voted, and then we'll wait for another 1 minute to kind of let people vote. बहुत से लोगों को it's quite good that many of you guys are getting the right answers. It's kind of a good sign that we know what's happening. People know what's happening when we're adding different components. So just आप सबको समझाने के लिए, जो ऑप्शन A है, ऑप्शन A is like a low pass filter, मतलब आपके हाई फ्रीक्वेंसीज को कट करेंगे। जो ऑप्शन B है is a high pass filter, मतलब आपके लो फ्रीक्वेंसीज को कट करेंगे। और जो लास्ट ऑप्शन है वो है इज मोर लाइक एन ऑल पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, जो कि सब फ्रीक्वेंसीज आपको मिल रही है। मतलब जो नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स जो सीम टुवर्ड्स द लोअर एंड एंड द हायर एंड, वो क्योंकि स्पीकर का नेचुरल रोल ऑफ होएगा, नो स्पीकर कैन प्रोड्यूस द एंटायर फ्रीक्वेंसी रेंज एक्यूरेटली, सो it's going to roll off regardless. So let's wait for another about 20 seconds and at least have 50% of the votes in. Again guys, please vote, don't hesitate. प्लीज वोट कीजिए। ज़्यादा इसके बारे में राइट या रॉन्ग कुछ आपका आंसर कुछ दिखने नहीं वाला है। इट्स जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। सो क्योंकि हमारे स्पीकर का वॉइस कॉइल भी एक कॉइल की तरह है, इंडक्टर की तरह है। सो वी एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लाउडस्पीकर के अलग अलग पार्ट्स एक कैपेसिटर की तरह बिहेव करते हैं, एक इंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। So we are just going to try and understand what is happening inside a loudspeaker as frequency is going up. So
So we have close to 60%, हमारे पास almost 60% के तक लोगों के वोट किया है. So जो पहला ऑप्शन है जो कि जो इंडक्टर सीरीज में है, I'm just going to quickly go back to the slide. तो उस स्लाइड पे जाएंगे. इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस उसको बोलते हैं, उसको रिएक्टेंस क्यों बोलते हैं मैं उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा, बट आप देख सकते हैं उसका फॉर्मूला जो है. आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर द रिजल्ट्स एज वेल, सो सब लोग देख सकते हैं कि सबने क्या वोट किया है. आप देख सकते हैं कि ओके, लेट मी जस्ट गो बैक, सॉरी. जो इंडक्टर का रिएक्टेंस है जो है 2πfl, मतलब जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है इंडक्टर का रिएक्टेंस बढ़ते जाता है, मतलब इट्स गोना स्टार्ट उसका रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है. तो एज जैसे ही हाई फ्रीक्वेंसी आने लगती है वी आर गोना गेट मोर एंड मोर रेजिस्टेंस. तो हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ वी आर गोना हैव मोर एंड मोर रेजिस्टेंस, सो इट्स गोना अलाउ ओनली लो फ्रीक्वेंसीज टू पास थ्रू, और जो हाई फ्रीक्वेंसी है उसको उसका रेजिस्टेंस बढ़ा के उसको कट करने वाला है. सो द करेक्ट आंसर फॉर व्हेन यू ऐड एन इंडक्टर इन सीरीज इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए. नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन अ कैपेसिटर इज इन सीरीज? कैपेसिटर का रिएक्टेंस का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 2πfc. तो आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर में है, जो नीचे की तरफ है, वो 2πfc है. मतलब जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, जो f हमारा कंपोनेंट है f, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है वो कम होने लगता है. तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है कैपेसिटर और खुलने लगता है. तो दैट इज द रीजन व्हाई कैपेसिटर जो लो फ्रीक्वेंसी जब होएगा तो नीचे का डिनोमिनेटर छोटा होगा और रिएक्टेंस बड़ा होगा. एंड एज फ्रीक्वेंसी इज गोइंग अप द डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बिकम बिग. जो नीचे का डिवाइजर है वो बड़ा होने वाला है, और जो कैपेसिटर का जो ब्लॉकिंग पावर है वो कम होने लगता है. तो इसके लिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नज़र आएगी, एंड दैट इज द रीजन ऑप्शन बी इज मोर लाइक द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यू वुड गेट व्हेन अ कैपेसिटर इज इन सीरीज विद इट. व्हेन यू गेट एन इंडक्टर इन पैरेलल, नाउ जो इंडक्टर आप पैरेलल में रखेंगे, हमको मालूम है कि इंडक्टर का जो रिएक्टेंस है फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ते जाता है. तो जब करंट सिग्नल जनरेटर, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस out here so it's nice and visible, and तो जैसे ही करंट सिग्नल जनरेटर से आएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी जहाँ बढ़ते जाएगी जो हमारा इंडक्टर है ये इसका ब्लॉकिंग पावर और बढ़ने लग जाएगा, और ज़्यादा करंट जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी ज़्यादा करंट हमारे स्पीकर के थ्रू से आएगा. So as an inductance is going up and it's in parallel, it's going to block more and more energy. So it's going to be allowing more and more energy to go through the loudspeaker. तो speaker की तरफ ज़्यादा energy जाएगी, which is why when an inductor is in parallel, you're going to get again option B, which is more like how it is a capacitor in series. In fact, यही जो हम लोग अपना second order capacitor रहता है, अगर HF के लिए आप देखेंगे एक कैपेसिटर सीरीज में रहता है और एक इंडक्टर पैरेलल में रहता है. दिस इज सिंपली अ क्रॉसओवर नेटवर्क दैट यू आर गेटिंग. एंड द सेम थिंग व्हेन यू आर मूविंग ऑन टू अ कैपेसिटर इन पैरेलल, आप देख सकते हैं कैपेसिटर में जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी इट्स गोइंग टू स्टार्ट अलाउइंग द रिएक्टेंस. जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी ये जो कैपेसिटर का जो ब्लॉकिंग पावर है इट्स लेट मी जस्ट गो अहेड, जो कैपेसिटर का ब्लॉकिंग पावर है फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है वो कम होते जाएगा, एंड इज गोइंग टू अलाउ मोर एंड मोर करंट टू गो थ्रू द कैपेसिटर एंड लेस टू गो थ्रू द लाउड स्पीकर. तो जैसे ही कैपेसिटर पैरेलल में होता है यू आर गोइंग टू बी गेटिंग ऑप्शन ए as your expected loudspeaker expected output from a loudspeaker. So anything in parallel is what you're going to expect. Option A, it's again going to act as a low pass filter. और जैसे हमने देखा है जैसे वूफर के लिए हम हमेशा एक कॉइल सीरीज में डालते हैं, एंड इफ यू ऐड अ कैपेसिटर इन पैरेलल इट एड्स जो स्लोप है उसका वो फर्स्ट ऑर्डर के बदले में सेकेंड ऑर्डर का क्रॉसओवर नेटवर्क हो जाता है. सो दिस इज प्रीटी मच व्हाट वी आर गेटिंग आउट ऑफ क्रॉसओवर when we are making, and it's a basic straightforward formula, nothing, no complicated, and you're going to see that these effects are there in a loudspeaker. इसके सारे effects हम देख सकते हैं कि एक लाउडस्पीकर में होंगे, क्योंकि ये लाउडस्पीकर में एक कॉइल है हमारा जो कि अलग अलग चीज़ों से इंटरेक्ट करता है. सो
let's just quickly move on and see how a loudspeaker is exactly working. So loudspeaker, you can see अलग-अलग parts उसके. We're going to get into the cross section, but आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ये basic जो loudspeaker का movement है, जो cone आगे पीछे होता है. You know, you can see out here on the left, the cone जो surround है cone का ऊपर की तरफ, dust cap followed by this cone, and you know the what's that? Just a second. Are you changing your slide? Because for me, it is still on the pole. What will be the output of the following circuit? Oh, I've changed my slide. So I cannot see the change slide. I don't No, know. it's about not that. visible, Karan. It's not visible. It's not there. Oh, so the what is the last slide that you guys can see? We are still seeing the options A, B, and C. Did you guys get to see the part where I was? Did you see No. the when I was putting the inductor in parallel and inductor in series? No, we couldn't. Okay, let me just stop share and share my screen again. So I'm sorry about that. Okay, so is my screen is it changing slides now? Yeah, now it is changing slides. Okay. Yes. Was Can the we go part? through this briefly? The thing, Okay, all sure. the four options. Yeah. Yeah, I'll go across the four options again. So जैसे कि आपने देखा, I'm sorry about the screen share, I was not aware. The जो इंडक्टर का रिएक्टेंस है, जो उसका रेजिस्टेंस है, जो उसका ब्लॉकिंग कैपेसिटी है, वो बढ़ते जाता है एज फ्रीक्वेंसी. आप देख सकते हैं इसके फॉर्मूला में द इंडक्टर रिएक्टेंस इज डिफाइंड बाय फॉर्मूला 2 into पाई, जो पाई का वैल्यू है 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू इंडक्टेंस. इंडक्टेंस का आप देख सकते हैं अलग अलग इंडक्टर के वैल्यू आते हैं हमारे मार्केट में, जैसे कि 0.5 मिली हेनरी या 1 मिली हेनरी. सो यू गेट different inductors. That L value is fixed, so the inductor value of the inductance constant is fixed at whatever inductor value you're choosing. As frequency is going up, जैसे frequency बढ़ते जाता है, your inductor reactance is going to start increasing. So as frequency is going to go up, is going to block more and more of the high frequencies. So ये जो inductor है, जैसे ही frequency बढ़ते जाए, is going to block more of the high frequencies, and is going to, that's the reason you're going to get option A as a expected output when inductor is in series. जब आपका इंडक्टर सीरीज में है, आपका जो ऑप्शन ए है जो कि लो पास फिल्टर है, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसका आउटपुट. जब कैपेसिटर सीरीज में है, कैपेसिटर आप देख सकते हैं उसका जो डिनोमिनेटर है, कैपेसिटर का रिएक्टेंस 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू फ्रीक्वेंसी इनटू कैपेसिटेंस. जो उनका कैपेसिटर वैल्यू है, जैसे कि 1 माइक्रोफैरेड या 3.3 माइक्रोफैरेड या 6.8 माइक्रोफैरेड या any of these values you're getting, that is constant, that does not change. जो आप कैपेसिटर खरीदते हैं मार्केट से and it's in series with the speaker, that is constant. Now the only thing that is changing, जो सिर्फ जो अकेले चीज जो चेंज हो रही है, जो है फ्रीक्वेंसी. तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है, ये जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है वो कम होने लगता है. तो you're going to have a much smaller capacitor reactance for higher frequencies. So this is acting like a high pass filter, जो कि ऑप्शन बी है. आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को थोड़ा ब्लॉक करके हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी को अलाउ किया है. एंड व्हाट हैपेंस व्हेन इट्स इन पैरेलल? व्हेन इट्स इन पैरेलल, आई एम जस्ट गोइंग टू एनोटेट इट अगेन सो यू गाइस सी इट एंड चेंज द कलर. सो जैसे ही करंट आया आपने सिग्नल जनरेटर से और इंडक्टर, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, ये जो हमारा ब्लॉक है इंडक्टर का, उसका रेजिस्टेंस बढ़ते जाता है. जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाती है, रेजिस्टेंस बढ़ने की वजह से देयर इज गोइंग टू बी मोर एनर्जी गोइंग थ्रू द स्पीकर. तो जैसे ही लेट मी चेंज इट टू एन एरो, सॉरी. तो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है, इंडक्टर का वैल्यू बढ़ने लगता है एंड देयर इज मोर एनर्जी थ्रू द लाउड स्पीकर. सो एन इंडक्टर इन पैरेलल is more like a high pass filter, जो कि option B है. So whenever an inductor is in parallel, is going to be allowing more and more energy to go through the loudspeaker as frequency goes up. And this is the जो हमारे crossover network में आप देख सकते हैं कि अगर commonly अगर आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ draw भी करूँ, just hold on, let me just draw this. So hold on. Let me change it to a different color, and yeah. So sorry. Yeah.
Let me choose a darker color. तो जो क्रॉसओवर नेटवर्क में आप देखते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी का जो नेटवर्क आता है सेकेंड ऑर्डर का, एक कैपेसिटर सीरीज में होती है और एक इंडक्टर पैरेलल में होता है. दिस इज कॉमनली नोन एज अ सेकेंड ऑर्डर हाई पास फिल्टर, जो कि एक फिल्टरिंग एक कैपेसिटर ने किया सीरीज में, एंड द सेकेंड फिल्टरिंग वाज डन बाय द इंडक्टर इन पैरेलल. सो अगेन मूविंग ऑन, व्हेन देयर इज अ कैपेसिटर इन पैरेलल, जैसे ही कैपेसिटर पैरेलल में आया, जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ते गई, ये कैपेसिटर जो है इज गोना द इंडक्टर द कैपेसिटर का जो ब्लॉकिंग पावर है वो कम होने लगता है. सो इज गोना एज फ्रीक्वेंसी इज गोना बी गोइंग अप, इज गोना अलाउ मोर एंड मोर एनर्जी टू गो थ्रू द कैपेसिटर. तो जो जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाएगी, इज गोना अलाउ मोर एंड मोर ऑफ द एनर्जी टू गो थ्रू द कैपेसिटर. और जो स्पीकर है उसमें यू कैन एक्सपेक्ट नाउ अ लो पास फिल्टर, जो कि ऑप्शन ए है. दैट्स व्हाट यू गोना एक्चुअली एक्सपेक्ट आउट ऑफ द स्पीकर टू कम आउट. एंड सेम वे जैसे हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा, सेम वे अगर हम क्रॉसओवर नेटवर्क में भी देखेंगे, बहुत बार आपने देखा होगा कि क्रॉसओवर नेटवर्क में हमारा जो इंडक्टर है एक सीरीज में होता है. तो हम जस्ट गोना क्विकली ड्रॉ इट. एक सीरीज में एक इंडक्टर रहता है और पैरेलल में एक कैपेसिटर रहता है स्पीकर के अक्रॉस. सो दिस इज मोर लाइक अ सेकेंड ऑर्डर क्रॉसओवर नेटवर्क. एंड उसका जो वैल्यू हम चूज करते हैं, इट्स अगेन बेस्ड ऑन अ क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी एंड different parameters. So this is how your crossover your what is, जब आप इंडक्टर या कैपेसिटर सीरीज या पैरेलल में ऐड करें, this is what's happening. And अगर हम आगे जाएं, this is what is a speaker moving in and out. So you can see that the moving parts जो speaker के हैं, जो है speaker का surround, जो ऊपर on the top thing that you see that is attached to the cone is a surround, followed by the speaker cone. The speaker cone has a dust cap on top. जो स्पीकर का कोन है, इट्स अटैच्ड टू अ स्पाइडर. ये पूरा आइटम ये चैसी को माउंट किया गया है, और ये स्पाइडर जो है इट्स अटैच्ड टू अ फॉर्मर एंड अ वॉइस कॉइल. एक कॉइल एक पेपर या अलग अलग मटेरियल के फॉर्मर पे गोल गोल तरीके से वाइंड की गई है. एंड दैट इज देन मूविंग इन एंड आउट ऑफ अ मैग्नेट. एंड दिस इंटायर impulse happens out of a signal coming from your amplifier. तो आपके एम्पलीफायर से सिग्नल आया, and how is the speaker moving in and out, ये speaker आगे पीछे कैसे जा रहा है, we are going to learn, and how different parameters are generated to determine what is the kind of box we need or what are we exactly doing. So I hope everything till here is clear. Any questions that we need to address so far? I think the most of the questions will cover in the meantime as Okay. you go ahead. So let's go ahead. Again, how speakers make sound. I want to actually ask you a question. So I'm going to launch another question. So I'm just launching for those of you who know about this. And there's a question. जो हमारा speaker है, वो किस scientist के principle पे base किया गया है? Is it Albert Einstein? Is it Michael Faraday, Isaac Newton, Thomas Edison? तो अलग अलग क्वेश्चंस हैं. एंड प्लीज अगेन आई एम गिविंग यू लाइक अ मिनट, 1 मिनट आपको मैं दे रहा हूँ. प्लीज फील फ्री टू आंसर, just go ahead and answer this question. So we all know like how is this, where have we learned how to use the speaker and what is the concept behind it. So we have over 25% votes, and I'm just going to wait for another 30-40 seconds for the remaining people to vote. Feel free to vote, guys. सभी वोट कीजिए. It's like I said, आपका जो वोटिंग है कहीं किसी को दिखने नहीं वाला है, but at least you'll know. अगर आपको ये टॉपिक के बारे में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो you can look into the work that the scientist has done and how it's being used in loudspeakers. So we are 50%. Let's just get 60% लोगों का वोट आ गया. Let's just then move on. So बहुत से लोगों ने काफ़ी सही जवाब दिया है. सो इट काइंड ऑफ मेक्स माय जॉब अ लॉट इजियर हियर.
and yeah, so we have about 60% people voting, and the correct answer is Faraday's first law. जो माइकल फैराडे साइंटिस्ट है, उसने बोला कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स, जो भी एक सर्किट के साथ जो एक मैग्नेटिक एनर्जी जो है, एक तरीके से बोलेंगे, जैसे ही चेंज होता है एक फोर्स जनरेट होता है जो इंड्यूस होता है सर्किट में, और वो जैसे ही जितना ज़्यादा चेंज होएगा उसके हिसाब से वो फोर्स का जो वैल्यू है वो और बढ़ते जाएगा. सो दिस इज समथिंग दैट वी हैव लर्नड इन समथिंग दैट वी कैन अप्लाई इन लाउड स्पीकर्स, जो कि आप देख सकते हैं जैसे ही सिग्नल और तेजी से एक बड़ा एम्पलीट्यूड का सिग्नल, जैसे कि किसी ने एक डीजे का बड़ा बीट डाला या किक ड्रम को जोर से बजाया, उसका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है. सो वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाले सिग्नल को उसकी वजह से हमको कोन को और आगे पीछे ज़्यादा करना है. एंड दिस इज द रीज़न वाई हाउ लाउड स्पीकर्स आर वर्किंग, एंड यही प्रिंसिपल के पीछे हमारा लाउड स्पीकर चल रहा है. सो वी जस्ट गोना गेट इनटू डिफरेंट पार्ट्स, एंड यू नो मेरे लिए ये समझाना बहुत मुश्किल था, बट थैंक्स टू यू नो गाइस एट सेलेस्टियन, थैंक्स टू रायन, थैंक्स टू नील, मेरे को बहुत से स्लाइड्स और प्रेजेंटेशन मिले वहाँ से, जो कि जिसकी वजह से मेरा एक काम आपको सब समझाने के लिए बहुत आसान हो गया. तो एक स्पीकर का एक क्रॉस सेक्शन बहुत यू नो एक कट करके देखेंगे. दिस इज अ वेरी फेमस मॉडल कॉल्ड 666. बहुत से लोगों ने 666 एक हमारा स्पीकर है एक यूज़ किया होगा, एंड दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ड्राइंग फॉर इट. तो आप देख सकते हैं ये I'm just going to try and color it so that while I'm speaking you guys can get an idea what I'm actually talking about. So let me use a color of different. तो ये जो आप देख सकते हैं जो मैंने रेड में मार्क किया है, एक रिंग मैग्नेट है, एक रिंग जैसे अंगूठी आप पहनते हो, एक बीच में उसका एक एकदम हॉलो कैविटी है, एंड देयर इज अ रिंग मैग्नेट गोइंग अराउंड. अगेन दिस इज अ फेराइट मैग्नेट, इसका जो मैग्नेट है फेराइट है. ये जो मैग्नेट मैंने रेड में मार्क किया है ये पूरे सर्किल में जा रहा है, इसको पूरे को हमने आधे में कट किया है, एंड आई एम ट्राइंग टू गो वेरी एक्सट्रीमली स्लो सो यू ट्राई एंड गेट एन आइडिया. ये मैग्नेट के अंदर आप देखेंगे कि ऊपर और नीचे एक अलग अलग प्लेट है, एंड वील गेट इनटू द स्ट्रक्चर. मैग्नेट के स्ट्रक्चर के अंदर हम और जाएंगे, एंड इफ यू सी दैट दिस जो मैग्नेट के स्ट्रक्चर के अंदर एक let me mark it with a different color. So it's green, and sorry, it's on the wrong place. This mouse is, let me just show it here. तो ये जो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ग्रीन में जो मार्क किया है, ये वॉइस कॉइल है. वॉइस कॉइल का फॉर्मर है, जो एक राउंड एक सिलेंडर की तरह एक अलग अलग मटेरियल दिया गया है, और उसके ऊपर हमने वॉइस कॉइल वाइंड किया है. सो व्हाट यू सी इन ब्लू आउट हियर, व्हाट आई एम मार्किंग इज अ वॉइस कॉइल व्हिच इज वाउंड ऑन द फॉर्मर, और ये मैग्नेटिक फील्ड में अलग अलग घूम के, सॉरी आई मार्क द शॉर्टिंग रिंग, जस्ट होल्ड ऑन. सो द वॉइस कॉइल इज हियर. जो वॉइस कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड में ऊपर नीचे होने की बाद इट्स गोना बी मूविंग दिस कोन. जो वॉइस कॉइल को हमने कोन को चिपकाया है, सो वेरी क्विकली दे हैव आई एम गोना शो सम एरोज. देयर इज एन इनपुट टर्मिनल हियर, जहाँ से हम एम्पलीफायर से यहाँ हमारे इनपुट टर्मिनल को सिग्नल जाता है, वहाँ से ये अंदर हमारे लीड वायर है, लीड वायर से सिग्नल आगे जाता है वॉइस कॉइल की तरफ, जो हमने ब्लू में मार्क किया है. ये वॉइस कॉइल जो है मैग्नेटिक गैप में है, जो आप ब्लू एरिया मार्क किया हुआ देख रहे हैं वो हमारा मैग्नेट का गैप है, एंड वी आर गोना गेट इनटू मोर डिटेल्स अबाउट दिस. जो कोन है वो वॉइस कॉइल को हमने चिपकाया है, वो कोन आगे पीछे जा रहा है. कोन जो स्पीकर के चैसी को है दो जगह पे ज्वाइन किया है. द कोन इज माउंटेड एट 2 places. सो वन इज द स्पाइडर. I'll see if I can mark that in yellow, so it's a good color. And yeah, so जो yellow में है ये एक spider है. The voice coil is once at one point attached to the frame with the spider, and the other is the surround. ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये surround है. तो दो जगह पे the cone is you know stuck to the chassis, and
जो नीचे आप स्पाइडर देख रहे हैं वो वॉइस कॉइल और कोन के जो जगह है जहाँ वो ज्वाइन होता है वो पूरे जगह को एक जगह पे पकड़ रहा है. एंड सेम वे वी हैव the back plate, the top plate, which is transferring the magnetic energy, and then we'll learn how this is happening really shortly. So I hope everyone is clear with the cross section of the loudspeaker. It's an important parameter that ये समझने के लिए आगे कैसे चलता है, all the different parts is very important. So I'm just going to quickly move on. तो पहले हमारा मैग्नेट असेंबली है. मैग्नेट असेंबली में ये जो हमने बताया जहाँ ये मैग्नेट लिखा हुआ गया है, दिस इज अ राउंड मैग्नेट. वी आर यूजिंग ऑलवेज अ रिंग शेप मैग्नेट फॉर हमारे मेजरली यू सी द काइंड ऑफ स्पीकर्स वी सेल. जो हम स्पीकर बेचते हैं majority of speakers are ferrite. They have the iron is made of ceramic, और बहुत से लोग उसको ceramic बोलते हैं. I think ceramic is a more popular term used in UK, but इंडिया में हम सिर्फ बोलते हैं कि ये फेराइट का मैग्नेट है. रिंग शेप है एंड समटाइम्स बहुत नियोडिमियम जैसा है, बहुत ही महंगा है, बहुत ही हल्का भी है, बट बिकॉज ऑफ द कॉस्ट, बिकॉज इट्स बीइंग एक्सपेंसिव, it's not as widely used in India as much as ferrite. I mean, the kind of sales we do is about 90% ferrite and 10% in neodymium. So India is a price sensitive country. India में price का बहुत ही महत्व है और ये it's a very important factor. So that's the reason we sell ferrite a lot more. And इसका एक permanent, ये जो आपने देखा होगा मैग्नेट, आपने फ्रिज पे आपने मैग्नेट लगाया होगा या आपने कभी ना कभी जिंदगी में मैग्नेट के साथ खेला होगा. उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है बहुत परमानेंट रहता है. इट डजंट चेंज विद टाइम unless there are you heat it, उसको बहुत ही गर्म करे, या there are different things that you can do, but over time it remains pretty much permanent. जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है मैग्नेट का, it remains pretty permanent with time. तो इसकी वजह से हमारे पास एक परमानेंट फील्ड आ रहता है. और उसके साथ ही साथ उसके ऊपर एक टॉप प्लेट रहता है, जहाँ पे यहाँ एक फ्रंट प्लेट दिया गया है. दैट्स अगेन अ टॉप प्लेट मेड ऑफ स्टील. स्टील जो है एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है मैग्नेटिक एनर्जी का. तो जो टॉप प्लेट है और नीचे का जो बॉटम प्लेट और जो सेंटर पोल पीस आप देख रहे हैं दिस मार्केट, सो यू गाइस कैन गेट द बॉटम प्लेट एज वेल. सो दिस इज द बॉटम प्लेट दैट यू सी इज वन पीस. जो मैंने रेड में मार्क किया है, इट्स लाइक अ टी. So it's an inverted T, so many people call it a T yoke. Out here it's just called a yoke, but it's commonly called a T yoke because इसका जो shape है letter T के, अगर letter T को उल्टे में रखेंगे तो it's in the shape of a T. And the same way you have a top plate which is again a ring, जो एक steel का एक ring है, it's very similar to that. So this is a basic construction of हमारे जो magnet assembly का है. So just quickly moving on, जैसे कि मैंने बताया योक और फ्रंट प्लेट यूजुअली मेड ऑफ स्टील, और ये हमारे मैग्नेट के साथ में काम करके एक मैग्नेटिक सर्किट बना देता है. एंड जो हमारा जो टी योक है, आई जस्ट मार्क इट अगेन इन रेड. सो इट्स अ लाइन, लेट मी जस्ट switch it. जो हमारा टी योक है और हमारा टॉप प्लेट है, जो मैंने ग्रीन और रेड में मार्क किया है, इसके बीच में जो आप ब्लू एरिया, या आई कैन मार्क इट इन ब्लू, या ये जो ब्लू एरिया में कलर कर रहा हूँ इधर, ये एरिया के बीच में हमारा वॉइस कॉइल बैठा है. द वॉइस कॉइल विच इज मूविंग इन एंड आउट इज सिटिंग बिटवीन द टी योक एंड टॉप प्लेट. दिस इज एग्जैक्टली वेयर अ वॉइस कॉइल इज सिटिंग. सो आप जब स्पीकर रिकॉर्ड करेंगे या कॉइल बदली करेंगे, उसका जो वॉइस कॉइल का अलाइनमेंट है इज गोइंग टू बी इन बिटवीन द टी योक एंड द टॉप प्लेट. सो जस्ट मूविंग ऑन, ये मैग्नेट के बीच में हमारा वॉइस कॉइल इज मूविंग इन एंड आउट.